Hi everyone, welcome to iQuanta. I am Yogesh and today I am here with a new video on IPMAT exam pattern. Okay, I am talking about the latest IPMAT 2026 exam pattern. As you know that in India we have three different exams for IPMAT, IPMAT Indore, IPMAT Rohtak and JIPMAT exam. Okay, so these are the three major exams and there are some differences in their exam patterns. Okay, there is difference in number of questions in each section. There is difference in total timing, isn't it? In some of the exams we have sectional time limits as well, while in some of the exams we have overall time limit, right? So we are going to talk about that in detail today. I won't be taking much time. We'll try to finish this video in 10 minutes. So stay till the end, because usually what happens, students only know about one exam, IPMAT Indore. They do not research a lot about IPMAT Rohtak and JIPMAT, or they do not take Rohtak JIPMAT so seriously, but these could be very good backup exams if you are writing IPMAT Indore. Okay, if you are writing IPMAT Indore, IPMAT Rohtak and JIPMAT could be very good backup exams. So you should know their exam pattern as well and what kind of difficulty do they have. So IPMAT Indore, being the most famous exam, has slightly, I would say, moderate difficulty level, while if we come to Rohtak and JIPMAT, these are slightly easier than IPMAT Indore. So let's get started. When I talk about IPMAT, it's not just a single exam. IPMAT is the name of the test, IPM is the name of the program. So IPMAT is Integrated Program and Management Aptitude Test. Everybody knows about this. Once we crack the IPMAT exams and get into IIMS, we get to pursue a 5-year program which have 2 degrees. 3 years we pursue BBA and then last 2 years we pursue MBA, isn't it? But when we get into these IIMS, okay, there's not just one single exam. There are 3 different exams for IPMAT in India. IPMAT Indore, IPMAT Rohtak and JIPMAT. Okay, you should know the differences between all of these exams. When we talk about IPMAT Indore, so this exam does not help you just get into one college. Okay, IPMAT Indore exam helps you get into multiple colleges. So IPMAT Indore, if you crack this exam, you get into IIM Indore, you get into IIM Shillong, you get into IIM Ranchi, IFT Kakinada, IIM Amritsar, Nirma, Gujarat for IPM program. So Nirma is a private college. Okay. Nalsar IPM, this is in Hyderabad, okay, this is National Law University, Hyderabad. It has the IPM program as well, okay. Then we have TAPMI, we have IIM Sirmaur BMS program, okay. So one single exam IPMAT Indore and we can get into so many colleges. Similarly, when we talk about IPMAT Rohtak, it is only for IIM Rohtak and TAPMI so far, okay. And when we talk about JIPMAT exam, it is to get into IIM Jammu and IIM Bodh Gaya, and TAPMI accepts the score of almost all the 3 IPMAT exams, okay. So what do we see here? There are 3 different exams, not just one exam. So ऐसा ना हो जाए कि आप लोग अगर IPMAT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ IPMAT इंदौर के लिए प्रिपेयर करो. इवन दो अगर आप IPMAT इंदौर की प्रिपरेशन करते हो तो काफ़ी हद तक आपकी ऑलमोस्ट रोहतक और जिपमैट की भी प्रिपरेशन हो जाती है, बट इनका एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है. तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो एग्जाम को अटेम्प्ट करने की होती है, आपकी जो स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, उन सबका ध्यान आपको रखना पड़ता है. ठीक है, आई विल कम टू द एग्जाम पैटर्न. थोड़ा सा ब्रीफ में आपको अभी टॉप कॉलेजेस के बारे में दे देता हूँ, बिकॉज इन ईयर 2025 काफ़ी सारे एडिशंस हुए हैं. अ लॉट ऑफ न्यू कॉलेजेस हैव जॉइंड द लीग ऑफ आई वुड से आईपीएम प्रोग्राम, या फिर काफ़ी सारे आईएम्स के हैं यूजी प्रोग्राम लेकर के आए. सो अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ आईपीएम के, वी हैव आईएम इंदौर सबसे पहले, देन शिलोंग क्योंकि अब आ गया है, एंड शिलोंग वाज द 7th आईएम ऑफ इंडिया. आप कह सकते हो कि अब ये सेकंड बेस्ट आईएम बन चुका है आईपीएम प्रोग्राम के लिए, बट यहाँ पे सिर्फ मैथ स्टूडेंट्स अलाउड है. शिलोंग में मैथ स्टूडेंट्स अलाउड है, ओके. अगर आपके पास 11th 12th में मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स या कोर मैथ्स है तो आप इसमें जा सकते हो, बट इंदौर में स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स आर अलाउड टू राइट द एग्जाम एंड दे कैन गेट इनटू आईएम इंदौर, ओके. सो आईपीमैट इंदौर रोहतक जिपमैट एग्जाम को तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, चाहे आपके पास मैथ्स हो ना हो, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, हर कोई लिख सकता है इन तीनों आईपीमैट एग्जाम्स को. लेकिन जब हम कॉलेजेस की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो आईएम इंदौर में हर कोई जा सकता है, किसी भी स्ट्रीम से हो. शिलोंग में लेकिन आपकी मैथ्स कंपलसरी होती है क्लास 11 12 में, ठीक है. आईएम रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया, इन किसी में भी मैथ्स कंपलसरी नहीं है. बट एज सुन एज वी कम टू आईएफटी काकीनाडा, दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, इसमें भी मैथ्स कंपलसरी. आपके पास 11 12 में अप्लाइड मैथ्स या कोर मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, दोज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स यू शुड हैव, ओके. आईएम अमृतसर भी एक नया कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ है जिसने आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, बट यहाँ भी ओनली मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ही अलाउड है, ओके. निरमा में हर कोई जा सकता है. आईएम सिरमौर में यूजी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ना कि आईपीएम, ओके. सो ये आपको सिर्फ ग्रेजुएशन देगा, विच इज कॉल्ड बीएमएस प्रोग्राम, ठीक है. एंड देन वी हैव तापमी, नालसार, एनआईसी, एमएआर पुणे, दीज आर कॉलेजेस फॉर आईपीएम अगेन, ओके. सो आई होप आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग इन कॉलेजेस की हो गई है. बाकी जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. एवरेज सैलरी पैकेज अगर मैं देखूँ तो आईएम इंदौर का 26.2 लाख पर एनम के आसपास ही है. शिलोंग का भी 26.1 है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट शिलोंग का अगर आप
एवरेज सैलरी पैकेज 2025 में देखोगे प्लेसमेंट रिपोर्ट में तो लगभग 26.1 के आसपास है। ओके, रांची 17, रोहतक 18, काकीनाडा, जम्मू, बोधगया, आप इन सब के भी लेटेस्ट पैकेजेस गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हो। ओके, यू कैन सिंपली राइट आई एम रांची 2025 प्लेसमेंट रिपोर्ट, ओके, एंड यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। सो लेट्स गो अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ आईपीमेट इंदौर। सबसे फेमस एग्जाम है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं। अप्रॉक्स आप कह सकते हो कि 35-40,000 बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं। ओके, ये एग्जाम थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है, क्यों? क्योंकि इस एग्जाम को अगर आप देखोगे, इसके अंदर सबसे पहले होते हैं 3 सेक्शंस। ओके, फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बट ये होता है शॉर्ट आंसर टाइप। इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट आंसर टाइप में आपको एमसीक्यूज नहीं मिलते हैं। एमसीक्यूज क्या होते हैं? जहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा बट ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। सो हाउ विल यू राइट योर आंसर? हर क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स मेंशन्ड होता है, उस बॉक्स में आपको अपना आंसर डालना होता है, जस्ट द आंसर। ओके, सो सपोज योर आंसर इज कमिंग आउट 15, तो आप उसमें 15 लिख दोगे, ठीक है? यू डोंट हैव टू डू द एंटायर सॉल्विंग, यू डोंट हैव टू राइट द स्टेप्स, जस्ट द आंसर। बट गुड थिंग अबाउट दिस सेक्शन इज कि ये पहला सेक्शन है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आई एम इंदौर के अंदर, ठीक है? ये सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने मिलता है फॉर 40 मिनट्स। इनिशियल 40 मिनट्स के लिए जो क्लॉक चलेगी उसमें आप सिर्फ इसी सेक्शन को अटेम्प्ट करोगे, आप दूसरे सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते हो। इस सेक्शन में 15 क्वेश्चंस होते हैं, ऑल विद नो नेगेटिव मार्किंग। बट अगर मैं आपको थोड़ा सा इनसाइड द सेक्शन बताऊं, देन 9+ क्वेश्चंस लगभग इस सेक्शन के अंदर हमेशा क्लास 6 to 10 की मैथमेटिक्स के टॉपिक से आते हैं। तो नॉन मैथ्स वाले भी अच्छा खासा अटेम्प्ट इस सेक्शन को कर सकते हैं। लगभग 5 या 5+ क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्लास 11-12 की मैथ्स से आते हैं, वो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स से, ठीक है? वो कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं आप इधर कमेंट कर सकते हो, आपको बता दूंगा। अदरवाइज यू कैन वॉच माय लेटेस्ट वीडियो ऑन आईपी मैट syllabus, okay, 2026 updated syllabus, it is in the video section only, okay? Once these 40 minutes are over, इसकी सेक्शनल टाइम लिमिट ओवर हो गई, ये सेक्शन आउट हो जाएगा, आप इसमें वापस नहीं जा पाओगे, you will not be able to edit your answers, this section is closed, 40 minutes are over, you will directly be thrown to the next section which is called quantitative ability MCQ. Now you have MCQs, multiple choice question, there will be 4 options, हर क्वेश्चन के लिए अगर आप करेक्ट करते हो 4 मिलेगा, +4 मार्क्स, अदरवाइज आप गलत करते हो तो -1। यहाँ पे पेनल्टी भी होती है, इफ़ यू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वैसे ही शॉर्ट आंसर में क्या था, आपको +4 मिलेगा अगर आप सही करते हो, अगर आप गलत करते हो तो 0। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, तो आप सारे क्वेश्चंस फर्स्ट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हो। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू लेटर कि आपने सारे क्वेश्चंस को क्यों अटेम्प्ट किया, अगर आपको सारे नहीं आते नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, ओके? आप कैलकुलेटेड गेस भी फर्स्ट सेक्शन में ले सकते हो। Once this section is over, again इस सेक्शन में 30 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मिनट्स ही आपको मिलते हैं, ओके? तो अगेन यहाँ 40 मिनट्स जैसे ही ओवर हो जाएंगे, ये सेक्शन अगेन ये भी आउट ऑफ द एग्जाम हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, आप इसमें वापस नहीं जा पाओगे। यू विल डायरेक्टली बी थ्रोन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज कॉल्ड वर्बल एबिलिटी MCQ। वर्बल एबिलिटी इज मोर ऑफ इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको आइडिया लेना है आईपीमेट के एग्जाम्स कैसे होते हैं, आप आईपीमेट इंदौर का पास ईयर पेपर ओपन करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके? एंड इस सेक्शन की खास बात क्या है कि इसमें इस बार क्वेश्चंस इंक्रीज होके आए थे। कैसे? 2 चीज़ें होती हैं, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ पैसेजेस आते हैं, वाइल वर्बल एबिलिटी में आपका ग्रामर वाला पोर्शन, वोकैबुलरी वाला पोर्शन, वर्बल एबिलिटी वाला पोर्शन सारा आ जाता है। इस बार क्या हुआ था, यूजुअली आईपीमेट 2024 तक 12 क्वेश्चंस ही आते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, लेकिन इस बार इंक्रीज होकर के 18 क्वेश्चंस आए, यानी कि 3 पैसेजेस टू सॉल्व थे इस बार। हर पैसेज में 6-6 क्वेश्चन थे, 3 × 6 18 क्वेश्चंस। इससे पहले 2 ही पैसेज आते थे, 2 × 6 12 क्वेश्चंस। तो फॉर्मेट में चेंजेस हुए हैं थोड़े से, ओके? हर आईपीमेट 26 एस्पिरेंट को ये चेंजेस पता होने चाहिए, ओके? अब अगर आप देखोगे तो लगभग इसमें 18 क्वेश्चन जो है आपके आरसी से आ रहे हैं। इसमें अगेन 40 मिनट्स का ही टाइम होता है और आपको 45 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इंग्लिश में आपकी जो सॉल्विंग स्पीड है वो फास्टर होती है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, राइट? बट ये सेक्शन भी आपको 40 मिनट्स के लिए मिलेगा। दीज आर द लास्ट 40 मिनट्स ऑफ द एग्जाम। वंस दिस इज ओवर योर एग्जाम इज सबमिटेड, ओके? अगर आप इसका बाइफर्केशन देखते हो, अगेन आई सेड 18 क्वेश्चंस लगभग आपके आरसी से आएंगे, बाकी बचे हुए 27 क्वेश्चंस आपके लगभग कहाँ से आएंगे, वोकैब, वर्बल एबिलिटी, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल्स, ऑल दोज टॉपिक्स, ओके? आई होप एग्जाम पैटर्न इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट है 40 मिनट्स की फॉर ईच सेक्शन, एंड मार्किंग स्कीम है +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो वर्बल एबिलिटी में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, ओके? और इसमें भी होती है एमसीक्यू सेक्शन में, सिर्फ शॉर्ट आंसर सेक्शन में नहीं होती है, ओके? वन मोर थिंग, यू डोंट हैव टू स्टडी एंटायर क्लास 11-12 मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर आईपीमेट इंदौर। कई बच्चों को लगता है कि मुझे आईपीमेट इंदौर की प्रिपरेशन के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए पूरा 11-12 का मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। नो, 11-12 की मैथ्स में से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं जो आते हैं, ठीक है? अगेन आई वुड से गो एंड चेक माई syllabus video, okay, on IPMAT इंदौर syllabus। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्टेड 8 to 9 टॉपिक्स आर इनफ।
दैट्स इट अबाउट आईपी मैट इंदौर एग्जाम पैटर्न। लेट्स टॉक अबाउट द रोहतक एग्जाम पैटर्न। रोहतक एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा स्पेशल है। कैसे? अगेन इसमें भी आपके तीन ही सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पहली चीज यहाँ पे जो चेंज हुई है वो क्या है? लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग तो आईपी मैट इंदौर में थी ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं थी, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी अगर आप इंदौर की पढ़ के चल रहे हो, आप इजीली रोहतक की कर सकते हो। अगर आप वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंदौर के लिए पढ़ रहे हो, आप इजीली रोहतक की कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग आपको अलग से पढ़नी पड़ती है रोहतक और जिपमैट के लिए। तो लॉजिकल रीजनिंग इंदौर में नहीं आती, रोहतक और जिपमैट में आती है, ठीक है। नाउ लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली वो सारे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपको फिगर्स, पैटर्न्स, लेटर पैटर्न्स, राइट, यू हैव टू चेक नंबर सीरीज वाले पैटर्न्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन हो सकता है, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कल अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो सारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। हर सेक्शन में यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होते हैं। अब एक चीज को ध्यान से सुनना, हर साल आईपी मैट रोहतक क्या करता है, अपना नोटिफिकेशन जब रिलीज करता है कि इस बार पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उसमें हर साल वो क्या करता है, आपको टाइम लिमिट देता है हर सेक्शन की 40 लिखता है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम आता है, जिस दिन आप एग्जाम देने आते हो, उस दिन कोई टाइम लिमिट नहीं होती सेक्शंस पे। आपको पूरे 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स मिलते हैं, ठीक है, इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। एंड यू कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन सेक्शंस, यानी कि सपोज आपका फेवरेट सेक्शन है वर्बल एबिलिटी, बट स्टार्ट एग्जाम क्वांटिटेटिव एबिलिटी हो रहा है, तो आप डायरेक्टली वर्बल में जा सकते हो करने के लिए। अगर आपको वर्बल ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको वर्बल में ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप वर्बल में अच्छा स्टार्ट लेना चाहते हो, तो आप यहाँ जा सकते हो। सिमिलरली आप यू कैन कीप स्विचिंग बिटवीन एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी सेक्शन इन आईपी मैट रोहतक एग्जाम। ये लग्जरी आपके पास इंदौर में नहीं होती है, ठीक है। हाँ, बट आपको ये मान के चलिए कि थोड़ा बहुत रेडी होके चल सकते हो कि अगर सेक्शनल टाइम लिमिट आ गई तो फिर क्या करेंगे। तो आप चाहो तो इसको टाइम लिमिट के विद इन भी टेस्ट कर सकते हो, अपना मॉक्स लिख सकते हो। अदरवाइज जनरली जो मॉक्स आते हैं उनमें आपको टोटल 2 आवर्स की टाइमिंग मिलती है, जिसमें आप किसी भी सेक्शन में कभी भी स्विच कर सकते हो। यहाँ पे सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं, +4 -1 की मार्किंग होती है। सही करोगे तो +4, गलत तो -1। एंड इफ यू डोंट अटेम्प्ट इट, यू डोंट गेट एनी मार्क्स, ओके, कोई पेनल्टी नहीं है। सो आईपी मैट रोहतक में, आई एम रोहतक में बेसिकली सीट्स हैं 198, इस बार इंक्रीज हो गई है। इंदौर में 150 सीट्स है, ओके। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, लॉजिकल रीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ आईपी मैट रोहतक एग्जाम, क्लास 12 मैथमेटिक्स इज नॉट आस्क्ड इन आईपी मैट रोहतक एग्जाम। सो बहुत कम ऐसे आईपी मैट रोहतक के पास ये पेपर्स हैं जिनमें कुछ क्वेश्चन क्लास 11-12 के पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है, जैसे इनइक्वालिटी से, फंक्शन से, लॉगरिदम से। बट उससे ज्यादा आपसे आईपी मैट रोहतक कभी भी डेप्थ में, जितना डेप्थ में इंदौर पूछता है उतने डेप्थ में आपसे 11-12 की मैथ्स रोहतक नहीं पूछता है। तो अगर आप 11-12 की मैथ्स को नहीं भी करके जाते हो रोहतक के लिए, आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा आपका स्कोर अफेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। आप यू कैन स्कोर प्रिटी मच इफ यू डू ऑल द कंसेप्ट्स लाइक इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी टिल क्लास 10। आई होप दैट इज क्लियर। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। एवरी ईयर आईपी मैट रोहतक मेंशन्स सेक्शनल टाइम लिमिट ऑफ 40 मिनट्स इन इट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन बट डजंट गिव इट इन द एक्चुअल एग्जाम। एक्चुअल एग्जाम में पूरा टाइम मिल जाता है। आई होप द पैटर्न ऑफ आईपी मैट रोहतक इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Let's now go to the last exam which is called JIPMAT exam, okay। JIPMAT बिल्कुल एक कॉपी है रोहतक की, एक्सेप्ट कि यहाँ पे आपको पूरे पेपर के लिए 150 मिनट्स मिलते हैं। अगेन स्विचिंग बिटवीन सेक्शंस इज अलाउड हियर, तो ये ओवरऑल टाइमिंग मिलती है, किसी भी सेक्शन की कोई टाइम लिमिट नहीं है। JIPMAT में कभी सेक्शनल टाइम लिमिट वाला इशू नहीं है। क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी सेम बिल्कुल रोहतक की तरह। अगर आप रोहतक पढ़ के जा रहे हो, आप JIPMAT के लिए नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बस JIPMAT के मॉक्स दे सकते हो। इसमें क्या होता है कि 34 क्वेश्चंस, यानी कि जिपमैट के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। टाइमिंग आपके पास होती है टोटल 150 मिनट्स। अगर आप क्वेश्चन सही करते हो +4, गलत करते हो -1। ये भी सारे एमसीक्यूज ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं आते रोहतक और जिपमैट के अंदर, अभी तक नहीं आया। देखो एग्जाम्स जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे करके चलते हैं PYQs के थ्रू, बट ऐसा है कि कल के दिन अगर रोहतक आपसे शॉर्ट आंसर पूछ लेता है तो ऐसा नहीं कि आप डिनाई नहीं करोगे कि आपने तो पहले कभी दिया नहीं था तो आप कैसे दे दिया, ठीक है। आ सकता है, चेंजेस होते हैं एग्जाम्स के अंदर थोड़े बहुत, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग आपकी जिपमैट में भी आती है, ठीक है। क्लास 12 मैथ्स यहाँ बिल्कुल नहीं आती है। क्लास 11-12 की मैथ्स का आपको एक ट्रेस भी नहीं दिखेगा जिपमैट के एग्जाम के अंदर, ठीक है। एंड ये कंपैरेटिवली सबसे ईजियर एग्जाम होता है, तो डिफिकल्टी वाइज इंदौर सबसे डिफिकल्ट, फिर रोहतक, फिर जिपमैट। अब कुछ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप आईपी मैट इंदौर की प्रिपरेशन कर लेते हो, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू क्लियर अदर बीबी एग्जाम्स बिकॉज सिलेबस ऑफ क्वांट, वर्बल, लॉजिकल, डेटा इंटरप्रिटेशन सबका सेम ही होता है। तो अगर आप इंदौर प्रिपरेशन कर लेते हो आईपी मैट इंदौर, तो बहुत इजीली आप आईपी मैट रोहतक का एग्जाम भी लिख सकते हो, बहुत हद तक आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जिप मैट तो खैर बहुत इजी पड़ जाता है क्योंकि आप टफेस्ट एग्जाम आईपी मैट इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके नीचे के लेवल के डिफिकल्टी के एग्जाम सारे आप इजीली क्लियर कर सकते हो।
एंड सिमिलरली सीईटी यूजी का इंग्लिश जनरल टेस्ट आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्योंकि बहुत इजी आता है। सिम्बायोसिस, एनपैट, क्राइस्ट बैंगलोर के एग्जाम्स में भी क्वांट और लॉजिकल आती है। अगर आप इंदौर के लिए पढ़ रहे हो तो आप इनके लिए भी इनको भी इजीली क्रैक कर सकते हो। बाकी आईपीसीईटी का एग्जाम होता है दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, उसमें भी यही सिलेबस रहता है, उसको भी आप क्लियर कर सकते हो। एंड फाइनली कुछ और बीबी एग्जाम्स, कुछ और मैं कहूँगा मैनेजमेंट एग्जाम, नॉट स्पेसिफिकली बीबी एग्जाम्स, इस बार इंडिया में आए हैं जो आईएम्स में ही आपको ले करके जाते हैं, बट अपना अलग एग्जाम कराते हैं। जैसे कि आईएम कोझिकोड अपना एक बीएमएस प्रोग्राम करा रहा है, नॉट आईपीएम, उसके लिए वो अलग से टेस्ट लेता है। अगेन अगर आप इंदौर के लिए प्रिपेयर्ड हो, यू कैन इजीली क्रैक दिस। बैंगलोर का ऑनलाइन बीबीए का एक टेस्ट है जिससे आप आईएम बैंगलोर में ऑनलाइन बीबीए करते हो, उसमें भी जो सिलेबस है बिल्कुल आईपी मेट इंदौर की तरह। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप एक अर्ली स्टार्टर हो आईपी मेट इंदौर के लिए, तो इजीली आप फ्यूचर में जब कैट की प्रिपरेशन करते हो, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, या तो आईपीएम में चले जाते हैं आईएम्स के अंदर आईपीएम करने ही, देन 3 इयर्स के बाद एग्जिट ले लेते हैं, तो वो भी कैट का एग्जाम लिखते हैं टू गेट इनटू बेटर आईएम्स लाइक अहमदाबाद, बैंगलोर वगैरह, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनका आईपीमेट क्लियर नहीं होता है, तो उनका जो आईपीमेट का प्रिपरेशन हो चुका होता है उसको वो कभी वेस्ट नहीं आता है, वो आपका बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। तो आईपीमेट एस्पिरेंट्स, अगर आप पढ़ रहे हो, आपने जो पढ़ाई की, आपने जो मेहनत यहाँ पे करी है, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी इन अदर एमबीए एग्जाम्स लाइक कैट, जैट एंड मैट, स्नैप, बहुत सारे एमबीए एग्जाम्स होते हैं अच्छे अच्छे इंडिया में फॉर एमबीए इन फ्यूचर। आपको वहाँ बहुत चीज़ें ईजी पड़ेंगी देन समबडी हु इज डायरेक्टली स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर कैट। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, कॉलेजेस दैट डू नॉट कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं आईएम रांची में कैसे जाऊँ, उसका कौन सा एग्जाम है, काकीनाडा के लिए कौन सा एग्जाम है, सिरमौर के लिए कौन सा एग्जाम है। देखो, आईपीमेट इंदौर एक सिंगल एग्जाम आपको बहुत सारे कॉलेजेस में लेकर के जाता है। जैसे कि आईपीमेट इंदौर का अगर आप एग्जाम दे देते हो, आप आईएम शिलोंग जा सकते हो, आईएम इंदौर जा सकते हो, रांची जा सकते हो, काकीनाडा, अमृतसर, सिरमौर, निर्मा गुजरात, नालसार, तापनी, सब जगह जा सकते हो। लेकिन आप इनमें जाओगे कैसे, तो ये भी एक चीज़ है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव टू फिल देयर फॉर्म्स एंड पे एप्लीकेशन फीस सेपरेटली बाय विजिटिंग देयर ओन वेबसाइट ड्यूरिंग फरवरी और अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में आपका, मतलब फेब से अप्रैल के बीच में आपके आईपी मैट के एप्लीकेशन शुरू हो जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट ईयर 2026 है, फरवरी 26 में आईपी मैट की एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। आप आईपी मैट इंदौर भर दोगे तो उसी टाइम पे रांची भी, काकीनाडा भी, अमृतसर, ये सारे कॉलेजेस जो हैं अपनी अपनी वेबसाइट पे अपना एप्लीकेशन रिलीज करते रहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखना है आई एम शिलोंग, सो सॉरी यहाँ पे मैंने एक ट्रिपल आई मेंशन किया है, दिस इज आई एम, ओके। सो अगर आप आई एम शिलोंग के लिए जा रहे हो तो आपको सिंपली आई एम शिलोंग की वेबसाइट पे जाना है, आई एम शिलोंग आईपीएम गूगल पे सर्च करना है, आपको उसका पेज मिल जाएगा जहाँ पे आप आईपीएम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये कैसे अप्लाई होगा, ये आपसे आईपीमेट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर मांगेंगे, आप वहाँ डालिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आई एम इंदौर की वेबसाइट से आपकी फैच कर लेते हैं, एंड देन इट्स सिमिलर टू फिलिंग एनी ऑनलाइन फॉर्म। ओके, क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। कुछ और ऐसे टेस्ट आए हैं जिनको क्लियर करके आप आईएम्स में जा सकते हो। तो आईएम कोझिकोड में अगर आप जाना चाहते हो तो बीएमएस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसका अलग से एक टेस्ट आता है, उसका नाम ही यही है, आईएम कोझिकोड बीएमएस टेस्ट। आईएम बैंगलोर जाने के लिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन बीबीए डीबी मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से एक टेस्ट देना पड़ता है जिसका नाम लिखा हुआ है। आईएम संबलपुर ने रिसेंटली बीएस यानी कि बैचलर इन साइंस स्टार्ट किया है, आई थिंक कोई पब्लिक पॉलिसी समथिंग लाइक दैट कोर्स का नाम है। ये भी सीयूटी यूजी के थ्रू लेता है, ठीक है, तो इनके लिए अलग एग्जाम होते हैं। क्लियर, सिमिलर syllabus, I mean more or less is same. Okay, then you come to iQuanta's IPMAT course just in case you are preparing. आपके पास एक साल है अभी 26 स्टूडेंट्स के बाद, अगर आप 27 में प्रिपेयर कर रहे हो then you have 2 years. We have courses for both the students. You can come over here. I think everybody knows about iQuanta's WhatsApp groups. We are the fastest groups probably in India, जहाँ पे आपको genuine guidance मिलती है, सबसे फास्ट मिलती है, डे एंड नाइट मिलती है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, डू ज्वाइन दैट ग्रुप। ओके, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ऑल ऑफ यू हु आर नॉट इन दैट ग्रुप, फाइन, you can give it a read, ठीक है। We start your syllabus, we finish your syllabus, we start from the basics. We are the only platform in India जहाँ पे आपकी जो classes होती हैं वो Zoom पे होती हैं, live interactive classes, okay? And every class you would say is very very interactive. In fact, you miss a class, you'll get the recording of that class, okay? आप उसको कितनी बार भी play कर सकते हो। After that you get assignments, उनका discussion होता है, doubts वगैरह होते हैं, ठीक है, टेस्ट वगैरह होते हैं हर वीक, ठीक है। टाइमली सिलेबस कंप्लीशन होता है जिससे आपको लास्ट के जो 4-5 मंथ्स हैं वो इंटायरली मॉक के लिए मिल जाएं, ठीक है। एंड वी कीप गाइडिंग यू इन बिटवीन, ठीक है। यू ऑल्सो गेट बुक्स, यू ऑल्सो गेट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज फ्रॉम हियर ओनली। वी हैव मेंटोर्स फ्रॉम आईएम्स, ओके। इफ यू गो फॉर द iQuanta IPMAT mock test series, very very famous, okay. This year we have increased the number of mock tests as well for all the exams, and you don't get just IPMAT Indore Rohtak JIPMAT mocks here, you get mocks for all the BBA exams and other exams to get into IIMs, okay. In fact, you get all the past papers here for free as well. This is our 2025 result. We are still counting. There are 98 shortlists so far, okay. I'm Indore and Rohtak. So this is all about our result, okay. You can check it out,
And if you want to take our courses, you can visit our website iquanta.in/ipmat, okay? And there are further discount if you have very good percentage in class 10 and 12, okay? So go to this link, and you can also check our demo classes over YouTube. You can request in our WhatsApp group for a demo class. You'll also be getting a set of books through which you prepare during the entire year, okay? This is delivered to your home, and we also prepare you for interviews in the end. Do check our YouTube channel, join our WhatsApp groups, and if you want very fast updates for IPMAT, you can go to our IPMAT handle as well on Instagram, which is IPMAT_BB_prep, and you can also join our Facebook page just in case you use Facebook. Okay, that's all about the exam pattern. I hope it is clear to you. If you still have any doubt, do comment and keep coming back to iQuanta, okay, for all the updates, all the information regarding IPMAT. Thank you so much.